सो आवर टुडेज टॉपिक इज टपल्स इन द पाइथन। तो आज हम पाइथन के टपल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टपल्स होते क्या है, टपल काम कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एज आई टोल्ड यू इन माई अर्लियर वीडियो, दैट टपल इज immutable data type. That means in tuple, what we are passing, it's actually unchangeable. But today we are looking how we can change that things. So basically tuples क्लोज ब्रैकेट्स, ओपन क्लोज ब्रैकेट्स में किए जाते हैं और उसके अंदर हम डेटा डालते हैं। सो बेसिकली हम टपल्स के बारे में अभी देखेंगे। नाउ इफ़ यू गो विद द डेफिनेशन, टपल्स आर यूज टू स्टोर द मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल. Tuple is one of the four built-in data type in a Python used to store the collection of a data, and other three are list, set, dictionary, all with the different qualities and their usage. सबके आप अपने क्वालिटीज़ है, सबके आप अपने डिफरेंट यूसेज है. सेट अलग है, टपल अलग है, लिस्ट अलग है. लिस्ट is most of the used data type in the Python. If we compare with the tuple is actually fast than that of the list. So tuple is a collection which is in order and unchangeable. Tuple unchangeable है. Tuple are written in a round bracket. Tuples are written in a round bracket as well as they are been separated by the comma. If you look at the example, this tuple, ये हमने एक वेरिएबल बनाया. Here we have created one variable and we are assigning some values in it. Mean values, not values, means we are assigning strings in it. We are passing some strings in it. So if we look at the index number 0, we are having apple, banana and 3. The simple logic, we can print this tuple by by using the print function. In that we are passing this variable, this tuple. Okay, now how we can access this tuple? You can access the tuple atom by referring to the index number and inside the square bracket. जैसे कि हमें पता है, हम किसी टपल के अंदर अगर किसी एटम को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम उसे स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे प्रिंट फंक्शन के अंदर. सेम गोज फॉर द नेगेटिव इंडेक्सिंग. इफ यू गो फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट indexing from right to the left start from -1 and from left to right start from 0. So if we take the example, let's take the practical presentation of this. As per our practical presentation, we are looking for the tuple. Now if I take the t as a tuple, t as a variable, as we know that we are storing some item in a round bracket, so I have given some round bracket here and we are passing some strings. So if I take the name Roshan and we separated it by the comma. After that I am taking another example, that is a string. I am taking my friend's name Vibhor, जो कि थोड़ा हाइट में छोटा है. So and Ayush. So if I want to print this tuple, so how we can see this? So print, simply I will type the print and in that I will pass the variable t. If we click on the run, we will get our result. See, Roshan, Vibhor and Ayush. I hope कि आपको समझा होगा. Now if we go from the indexing value, as I told you that we will use the square bracket. I have taken the square bracket and if I pass the 0 in it and simply press on the run, what we will get? We will get only Roshan. Now if I pass the semicolon over here, let's see what we get. We get whole string. Okay, again I will pass the semicolon and I will type -2. Let's see what we get. Only Roshan. Why this happens so? If I type -1, oh sorry, 1, let's see why this happens so. ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मैंने इसके पहले भी बता चुका हूँ. क्या है, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, देखिए क्या होता है. ओके, और यहाँ पे अगर मैं 2 लिखता हूँ,
आई होप सो ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूँ, ये मैं डबल नहीं समझाऊंगा, वीडियो बड़ी हो जाएंगी और आप बोर हो जाएंगे इसलिए। नाउ what was, let's talk about the negative indexing. If I pass the -1 over here, let's see what we get. -1, आई होप सो कि मुझे आयुष ही मिलना चाहिए और आयुष मुझे मिला। और यहाँ पे मैं दूसरी चीज़ लिख लेता हूँ, ब्लैक। ओके, और मैं इसे रन करता हूँ, ब्लैक प्रिंट हो चुका है। हाँ, तो -1 ये हो गया, ये -2 हो गया है अभी। आई होप सो कि आपको इंडेक्सिंग का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स गेट डीप इन द टपल। व्हाट वाज आवर नेक्स्ट स्ट्रिंग? Next slide, changing the values in a tuple. Once the tuple has been created, you cannot change its value because it is immutable. The atom in a tuple cannot be changed. It is immutable data type, by the way. The tuple are unchangeable or immutable as it also is called. As it is also is called. ये थोड़ा ग्रामेटिकली थोड़ा मुझे लगता है कि रॉन्ग हो गया है, पता नहीं, बट लेट्स गो विद अ प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है अपने के लिए। बट देयर इज अ वर्क अराउंड, यू कैन कन्वर्ट द टपल इनटू द लिस्ट। हम टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे एंड चेंज द लिस्ट एंड कन्वर्ट द लिस्ट बैक टू द टपल। सो हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, पहले हमने एक लिस्ट बना ली है एक्स वेरिएबल के अंदर, जिसके अंदर हमने पास की है स्ट्रिंग एप्पल, बनाना एज वेल चेरी। सो again we are taking the y as a variable and converting that x tuple into the list. Okay, now at the index number 1, if I want to add the kiwi in semicolon, y लूँगा मैं वेरिएबल, स्क्वायर ब्रैकेट में 1 पास करूँगा और kiwi, और x again I will take a x as a variable and convert the y into the tuple. Let's see the practical presentation of this step. यही एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये लिस्ट है। नाउ आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू द लिस्ट, इज इक्वल्स टू लिस्ट, और उसमें मैं पैरामीटर पास कर दूंगा टी। नाउ अगर मैं लिस्ट में पहला पैरामीटर पहले इंडेक्सिंग नंबर पे मैं देना चाहता हूँ कि हर्षित, इफ आई पास द स्ट्रिंग हर्षित इन दिस हर्षित एंड कन्वर्ट दिस x equals to tuple y, print x. Let's see what we get. मैं थोड़ा गलत हो चुका हूँ या सही हो चुका हूँ, देखिए क्या गलत मिला है हमें। मेन पी वाई लाइन 5 में क्या गलत किया है मैंने, यहाँ पे मैंने y डाल दिया है जबकि मुझे यहाँ पे डालना चाहिए था l, और यहाँ पे टी, यहाँ पे टी डाल के देखेंगे या एल डाल के देखेंगे, देखते हैं क्या मिलता है हमें। ये देखिए रोशन, विभोर, आयुष, ब्लैक, बल्कि मुझे यहाँ पे अगर देखेंगे तो यही मिला है। सपोज मैं यहाँ पे एल पास करूँ, हर्षित, समझे आप यहाँ पे हुआ क्या? मैंने क्या किया, एक टी नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर टपल पास किए, मीन्स टपल, एंड लिस्ट एक यल नाम का वेरिएबल लिया और उस टपल टी को लिस्ट में कन्वर्ट किया, और लिस्ट के पहले इंडेक्स नंबर पे मैंने लिखा है हर्षित, 0 नंबर पे रोशन, 2nd नंबर पे विभोर और 1 नंबर पे विभोर। तो विभोर के जगह पे 1 नंबर पे विभोर है, तो विभोर के जगह पे मैंने हर्षित टाइप कर दिया है। सो टी इक्वल्स टू टपल एल। सो ये जो टी है, टी जो लिस्ट है, लिस्ट को हम डबल टपल में कन्वर्ट कर रहे हैं और टपल ही प्रिंट कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे मैंने एल पास कर दिया है। सो हमें क्या मिला है, हर्षित। आई होप सो कि आपको कंसेप्ट समझ में आया। नाउ लेट्स गो फॉर द न्यू स्लाइड। डिलीट, हम डिलीट कीवर्ड का क्यों यूज करेंगे? ओके, डिलीट कीवर्ड एंड जॉइन द टू टपल। ओके, लेट्स सी दिस। अगर मैं इस लिस्ट, ये जो लिस्ट बनाई है मैंने, इस पे यहाँ पे डेल फंक्शन यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं पैरामीटर पास कर देता हूँ टी और प्रिंट में डाल देता हूँ मैं टी।
तो देखिए मुझे मिलता क्या है, ये लिस्ट पूरी डिलीट हो जाएंगी। एरर, टी इज़ नॉट डिफाइन। टी क्यों नहीं डिफाइन है, बता सकते हो कोई? ओके, यहाँ पे एरर आएगा, टी डिफाइन ही नहीं हुआ है। समझ सकते हैं क्योंकि टी में हमने कुछ भी पास किया ही नहीं है बेसिकली। अगर कंसेप्ट देखेंगे तो टी डिलीट हो चुका है। ओके, ये मैं हटा दूँ। नाउ इफ यू वांट टू जॉइन द टू 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 टपल मुझे ज्वाइन करने, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे नाम लिख दूँ टी2। टी2 असाइन 1, 2, 3, 2, 4 एंड T3 ले लेता हूँ, एक T3 वेरिएबल ले लेता हूँ और उस पर असाइन करता हूँ T प्लस T2। लेट्स प्रिंट द T3, प्रिंट T3। लेट्स सी व्हाट वी गेट। 1, 2, 3, यहाँ पे देखिए बढ़ चुके, हमने 2 टपल को ज्वाइन किया है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया। नाउ what we gonna see, we gonna see some different thing. Let's see append function कैसे यूज़ करते, पर अब मुझे इसमें और एक चीज़ ऐड करनी है, अपेंड करना है मुझे कुछ। लेट्स सी, तो मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ लिस्ट में। लिस्ट इज इक्वल्स टू लिस्ट टी, इसको मैं टी कर देता हूँ और उसके बाद डालता हूँ मैं L.APPEND अपेंड। अपेंड के अंदर मैं स्ट्रिंग पास कर देता हूँ शिवम। शिवम, लेट्स प्रिंट एंड अगेन मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ किस में, टी असाइन टपल एल, प्रिंट। अगर देखते हैं, चलो प्रिंट टी करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो एरर मिलता है, क्या मिलता है हमें, आंसर मिलता है हमें शिवम पास कर दिया। अगर मैं इसको एल कर दूँ तो देखिए शायद एरर मिले, शिवम भी पास हो चुका है। ये क्यों हुआ बता सकते हैं? अगर मैं इसको हाइड आउट कर, इसको हाइड कर दूँ, लेट्स रन दिस नाउ। इफ यू सी, नाउ वी आर गोइंग टू सी द काउंट। ये काउंट क्यों यूज़ करेंगे हम, काउंट फंक्शन क्यों यूज़ करेंगे? रिटर्न द नंबर ऑफ अ टाइम्स स्पेसिफाइड वैल्यू ऑकर इन अ टपल। ओके, search the or index number, search the tuple for a specific value written in the position of where it was found। तो ये डेफिनेशन के थ्रू मत जाओ, सीधा सीधा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये काउंट का देखेंगे हम, काउंट में लिख देता है यहाँ पे मैं और एक पास कर देता हूँ 2। ओके, ये हो गई है प्रिंट एल नहीं करेंगे हम। सो बेसिकली ये हमारा फंक्शन लिखा है हमने L.count2 और मैं इसको पास कर दूंगा के वेरिएबल में और के को मैं प्रिंट करूंगा। सो बेसिकली हम देखेंगे क्या मिलता है हमें। हमें 2 बार 2 मिलना चाहिए, 2। देखिए ये 2 ये एक्चुअली अगर मैं इसको ये कर दूँ, क्या क्या कहते हैं इसे, यहाँ पे मैं प्रिंट एल लिख देता हूँ, प्रिंट एल। सो आई होप कि आपको समझ में आए मैं क्या कर रहा हूँ, एल एंड नाउ लेट्स सी। 2 चीज़ें मिलनी चाहिए। यहाँ पे देखिए इस लिस्ट में अगर हम देखेंगे तो 2 बार 2 आया है, 0 इंडेक्स पे और 1 इंडेक्स पे। तो हमने इस L.count को कैसे इस्तेमाल किया, हमने उसको के वेरिएबल में पास किया और सिंपली के को प्रिंट किया। सो एंड वी गेट द रिजल्ट। 2 बार हमें 2 मिल चुका है। एंड नाउ लेट्स सी इंडेक्स नंबर से देखेंगे हम इसको कैसे प्रिंट करेंगे। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे मैंने इंडेक्स नंबर का इंडेक्स फंक्शन को हम कैसे यूज़ करेंगे। सो बेसिकली इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे मैंने 34 डाल दिया है। तो देखते हैं हमें इसका इंडेक्स वैल्यू देगा 2 नंबर पे, मीन्स 34 किस नंबर पे, हमें 2 नंबर पे मिल चुका है। आई होप सो कि आपको कंसेप्ट समझ चुका होगा कि क्या है। एक बार मैं आपको ये इंडेक्स का एक बार ये दिखा दूँ तो ये देखेंगे, सर्च द टपल फॉर स्पेसिफिक वैल्यू। हम स्पेसिफिक वैल्यू सर्च कर रहे हैं टपल के अंदर की और उसकी पोजीशन हमें वापस मिल रही है। सो बेसिकली यही कंसेप्ट है इंडेक्स का। आई होप सो कि आपको कंसेप्ट समझ चुका होगा, आपको मेरी अंडरस्टैंडिंग तो हो रही नहीं होंगी।
फिर भी लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, बस पढ़ने को आओ और खुश रहो। बाय। कोई ज़रूरत नहीं लाइक करने की, कोई ज़रूरत नहीं सब्सक्राइब करने की, कोई ज़रूरत नहीं घंटा बजाने की। बस आओ, जाओ और पढ़ो। बाय। थैंक यू।